Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, in this Corporate Face to Face series, we introduce to you emerging companies from emerging sectors and talk to you about their company's business model, their business journey, their growth plans. And we make an effort to talk to the promoters of such companies so that all of us can understand their company's operations better. And friends, today we have got a very interesting company from the SME space, which just recently went public. The company's name is Amic Forgings Limited. And we have the pleasure of having the whole-time director, Mr. Anshul Chamaria, with us. Anshulji, thank you very much for sparing your valuable time with us. I'm quite sure this small interaction with us will help us understand your company's operations better. Thank you. Thank you for calling, sir. So, Anshulji, pehla sawal, first basic question which I want to ask you is that if you could explain to us, what is the broad business model of our company? Which sectors does the company cater to? And what is the positioning of Amic Forgings as on date in the domestic market? And, if you could also tell us something about your business journey, how did this business journey start? If you could add some color and, talk on all these points. Our clientele base are general B2B customers. Our major clients are all multinational companies like Tata Steel, L&T, BHEL, JSW, GSPL. And regarding, we deals in very precision engineering components. And regarding our positioning in the market, we are having the vast experience of last 40 to 45 years. And we are one of the leading suppliers from Eastern India right now. Our journey goes back for more than 45 years, started with my father, with small forging unit. And again, that thing took over by me. And right now, slowly and slowly, we got a growth, getting more confidence with the customers and everything. Right now, we are having two forging hammers with latest technology imported from outside, keeping environment friendly and everything. With all our in-house facility of machinings, taking us to next level, and our state-of-art testing facility is one of the best in India right now. Okay. So, Anshulji, now next question would be that in terms of SKUs, if you could tell us what are the products which the company manufactures, and currently हमारी कितनी install capacity है और मोटा मोटी हमारा capacity utilization कितना होगा? Sir, our unit has been divided into two sectors. One is forging and another is machining. Our forging division is being utilized 85% right now, and our machining facility is being utilized 100%. Okay. So all the concept of coming up with the ITO and everything to increase our machining facility so that we can use our 4G capacity to the maximum, where we are lacking 15% right now. Okay. Regarding our products, as I told you, it is precision engineering components, axles, wheels, shafts, crane wheels, what we are all dealing in. Okay. तो बेसिकली प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अंशुल जी, उसका मतलब हम रेडी टू फिट कंपोनेंट्स ही बनाते हैं, मशीन्ड होता है तो डायरेक्टली वो रेडी टू फिट कंपोनेंट क्लाइंट के लिए जाता है, राइट? Sir, you are 100% correct. Our products are ready to use for the customer. वो जाके सीधा they use it at their end. They did not process any further to it, sir. Okay, okay. But yeah, so sir, nicely articulated by you. Now tell me one thing, अंशुल जी, ओवरऑल डोमेस्टिक फोर्जिंग मार्केट और मशीनिंग मार्केट की अगर हम बात करें तो अगले 2-3 साल के लिए what is the kind of growth opportunity which you see? Like, today we are at 100 crores revenue. In the next say 3 years, not mentioning your revenue, but overall opportunity size market की कितनी बड़ी होगी और हमको क्या लगता है कि इससे और कितना growth possible लग रहा है? Like, are you at the cups of a very big kind of opportunity जहां पे आपको लगता है कि और थोड़ा wallet share customers का आपको मिलेगा? तो इसके बारे में बताइए. When we say about domestic market or the requirements, I must say the government coming up with the idea of Atmanirbhar Bharat, it has created a vast market opportunity for big multinational companies. Multinational companies increasing their manufacturing capacity has again opened a vast market for us because our heavy engineering precision components are being used by them. For each and every industry, whether it is a steel company or a medical industry where machine or heavy machine products are in use, our products are required. इसी कंसेप्शन में what has happened of the late,
our books of order shows the growth like anything. ये खाली जो गवर्नमेंट ने जो आत्मनिर्भर भारत लाए हैं, इसके कारण देयर इज अ स्टीप ग्रोथ इन आवर ऑर्डर बुक आल्सो. Okay. Going with the same thing, government has ensured that it doesn't order doesn't go outside. They have made a cap of up to 200 crores orders cannot be placed outside India. Okay. Where is the requirement? Okay. Which is very good us for us, and it has created a vast market. And in general, I'm seeing a minimum 8 lakhs of market, crores of market is there. इंडिया में इतना अभी भी हमारे प्रिसिशन इंजीनियरिंग में इतना मशीनिंग फैसिलिटी नहीं है या सप्लायर्स नहीं है राइट नाउ इन दिस हमारे सेगमेंट्स में. तो ऑफ द लेट अभी 2 साल 3 साल 4 साल तो वी आर नॉट वरीड अबाउट द ऑर्डर्स as on date, sir. So there is a huge market which has a huge gap right now. People are chipping in or coming in, but 3 4 साल 5 साल अभी कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है सर. ठीक है. अंशुल जी, अभी बताइए कि ओवरऑल अगर हम प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करें, लाइक यू हैव गॉट फोर्जिंग एज वेल एज मशीनिंग, लाइक व्हेन यू टॉक टू द कस्टमर, लाइक टिपिकली आपको प्राइस इंक्रीजेस या जो प्राइसिंग होता है हर प्रोडक्ट का, इज इट अ कस्टमाइज्ड प्रोसेस और इज इट डिसाइडेड बाय द कस्टमर, उसके साथ डिस्कशन करके कि प्राइसिंग एक प्रोडक्ट का इतना होगा, मशीनिंग का इतना होगा. तो प्राइसिंग को लेके सर हमारा कैसे सिस्टम है, लाइक is it done once a year or is it done 2 times a year? How does the pricing work for our company? Sir, regarding pricing, what is happening is our products are tailor made. Each and every particular product is peculiar in its nature. So every time the customer give us the order, they ask the rate from us, and the rates then negotiated and get finalized. Okay. In cases where gearbox industries are involved, we fix a rate once in a year because they have same types of job almost. But that also sometimes when the price of steel fluctuates, we comes into discussion. Okay. But it is very rare in nature. But for other customers, we fix rate with every requirements of theirs. अच्छा अंशुल जी, अभी एक रिलेटेड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, इज दैट फॉर सम ऑफ द कंपोनेंट्स आर यू द सोल सप्लायर और यू आर पार्ट ऑफ अ 2 to 3 वेंडर टीम? इफ यू कुड टेल अस दैट, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, टेलर मेड प्रोडक्ट आप बनाते हो, तो उसके लिए आर यू द ओनली वेंडर और भी कोई वेंडर होता है? क्योंकि आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी, आपका जो बार्गेनिंग पावर है, वो भी काफी अच्छी तरह से बढ़ेगा ना, अगर इफ यू आर वन ऑफ द सोल वेंडर. नहीं सर, हमारे लाइन में क्या ना कंपनी सोल वेंडर्स नहीं रखती है, बट रिक्वायरमेंट इज सो हाई कि वो जल्दी से बहुत ज्यादा कंपटीशन वाला चीज नहीं है. 2 से 3 सप्लायर लोग रखते हैं बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज एज यू नो दे डोंट अलाउ मोनोपोली, एंड वी आल्सो डोंट बिलीव इन मोनोपोली बिकॉज एक कंपटीशन साथ में रहते हैं ना, तो यू ऑलवेज ऑन योर फूट्स टू वर्क हार्डर एंड गेट बेटर रिजल्ट्स एट योर एंड सर. ओके. और नॉर्मली जो भी मशीनिंग का प्राइसिंग होता है वो प्रोडक्ट बेस, आपने बोला प्राइसिंग डिसाइड होती है, लेकिन बीच में मान लीजिए कि मटेरियल का खर्चा बढ़ गया, स्टील का कॉस्ट बढ़ गया, तो नॉर्मली कुछ पास थ्रू सिस्टम हमारे धंधे में होता है? सर वो अगर 5% से ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है प्राइस, तो देयर इज द प्रोविजन वी कैन अप्रोच द कंपनीज, तो उसके ऊपर नेगोशिएशन होके दे जनरली डू. बिकॉज सी द कंपनीज व्हाट वी आर डीलिंग इन ऑल बिग जायंट्स ऑफ इंडिया, और वो दे कीप देयर सप्लायर्स कंफर्टेबल बिकॉज दे हैव कम विद द न्यू कंसेप्ट दैट वी आर पार्टनर्स नॉट एज सप्लायर्स सर. करेक्ट. ठीक है. अभी अंशुल जी बताइए कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना कॉम्पिटिटिव है, यानी आपने बोला कि यू आर डीलिंग विद एमएनसी कस्टमर्स, लार्ज कस्टमर्स, तो ऑब्वियसली इवैल्यूएशन प्रोसेस भी काफी स्ट्रांग होगा, बट फिर भी कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसा है? इज इट वेरी कॉम्पिटिटिव और इसमें सिलेक्ट आपकी जैसी कंपनीज को मार्जिन कंफर्ट भी मिलता है, वॉल्यूम कंफर्ट भी मिलता है? और सेकंड पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट व्हाट इज इट सो स्पेशल अबाउट आवर कंपनी दैट वी डू थिंग्स बेटर? यानी कस्टमर हमारे पास आता है तो ऑब्वियसली देयर इज सम कस्टमर हु इज ऑब्वियसली फुल्ली satisfied with our product, with our skill sets. So what is the kind of value proposition which you give to the final customer? यानी from our side हम कैसे competitive प्राइस में भी होते हैं, क्वालिटी में भी होते हैं, तो इसका मोटा मोटी क्या प्रोसेस है अपने यहाँ से? Sir, as you rightly said, selection of the suppliers at the customers' ends are very typical in its nature, and वो आपको overnight orders नहीं देते हैं. They need to get the confidence because हम लोग का जो products होता है, if it fails at customer end, it will not only create a cures at their end,
but life risk is also there. बिल्कुल. Regarding the competition, uh, why we are getting the orders? Because see, in our, as I said, it is a tailor-made and high precision engineering is involved. So timely delivery is the main criteria, uh, along side by side with the rates. Okay. But timely delivery along with the quality, maintaining the quality, if you give the order, sometimes customers are ready to pay you 5 to 10% more than with your nearest competitors. Because if you don't deliver in time, their entire projects of lakhs of crores may get delayed, which is more costly to them rather to our 5 or 4 or 5%. But generally, market is not so much of pricing. It is more about quality with a timely delivery, sir. ठीक है. तो आई थिंक वेरी नाइसली आर्टिकुलेटेड अंशुल जी. नाउ मेरे को बताइए सर, हमारे इंडस्ट्री में और कौन से ऐसे कंपेरेबल लिस्टेड प्लेयर्स होंगे या अनलिस्टेड प्लेयर्स होंगे जो हमको डायरेक्टली कॉम्पीट करते हैं? हर हर बिजनेस पे कंपटीशन तो होता ही है, बट देन आपके लिए सर अगर मैं कंपेरेबल पेयर देखूं तो जो एग्जिस्टिंग फोर्जिंग कंपनीज है उसको मैं पेयर समझूं या कोई दूसरे नाम है जो आप बता सकोगे? एटलीस्ट ब्रॉडली वन और सर टू. देखिए, सर मैं किसी कॉम्पिटिटर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि ईस्टर्न इंडिया में वी आर वन ऑफ द लीडिंग फोर्जिंग डिविजन्स इन heavy forgers. We are one of the leading forging division with having all in-house facilities and everything, and you can consider as one of the main forces from Eastern India supplying to the market, sir, right now. ओके. ठीक है. अंशुल जी, अभी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे आते हैं. मैं देख रहा था कि आपका जो पिछले साल का रेवेन्यू था वो करीबन 115 करोड़ था और करीबन आपने Hmm. 9.8 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न किया है. तो मोटा मोटी करीबन 8%, 8.52% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट मार्जिन है. अभी बेसिकली सिंस हम एसएमई कंपनी है सर, अगले साल का विदाउट पुटिंग नंबर्स, अगर आप डिमांड आउटलुक थोड़ा सा हमको शेयर करें कि कैसा आउटलुक लग रहा है, कस्टमर से क्या सिग्नल मिल रहे हैं, और ये जो 8.5% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है ये कम से कम हम मेंटेन कर पाएंगे या इससे भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने की हमारे में पोटेंशियल? सर पोटेंशियल तो बहुत हाई है. ये हम आपको आपके लास्ट क्वेश्चन को पहले आंसर करते हैं कि जो 8.5% का जो हमारा जो प्रॉफिट है अप्रोक्सीमेटली जो आप बोल रहे हैं, खाली ये मेंटेन नहीं करेंगे बट इससे बेटर भी करेंगे. ओके. और दिस मच आई एश्योर यू. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स, ऑर्डर बुक बहुत अच्छे हैं हमारे पास में. दे आर वेरी हाई. तो वी एटलीस्ट सी ईयर टू ईयर ग्रोथ मिनिमम 20 to 25% का मिनिमम ईयर टू ईयर ग्रोथ हम देख रहे हैं सर. ओके. हमारे पास कैपेसिटी कंसेंट है, इसीलिए हम अभी आईपीओ लेकर आए हैं कि फर्दर कैपेसिटी इंक्रीज करके और इसका रिफ्लेक्शन आपको कमिंग टाइम्स में मिलेंगे सर. बिल्कुल. बट वंस अगेन वी अश्योर यू वी विल मेंटेन द प्रॉफिट मार्जिन्स मिनिमम 8.5% एंड वी विल डू इट बेटर देन दिस सर. ओके. अच्छा अंशुल जी, अभी हमने रिसेंटली हमारा आईपीओ कंक्लूड किया सक्सेसफुली. बेसिकली इसका या ऑब्जेक्टिव क्या था? आई मीन, वाज इट फॉर इंक्रीजिंग मशीनिंग कैपेसिटी, वाज इट फॉर वर्किंग कैपिटल? सर बेसिकली मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि पैसा कहाँ पे यूटिलाइज होने वाला है? sir, the main of our funds is being utilized for both forward integration as well as backward integration. And when we say forward integration, we are coming up with most of the CNC machines. As I told you earlier, we are having the forging capacity, but we cannot capitalize this with our machining facility right now, which is up to 100% right now. So we are adding on CNC machines, further and more precision machines, which will add our end products, ओके. which will increase our margins and everything. ओके. Another part of the fund will be going for backward integration as well. We are coming with a mini steel plant, which will be a supplier to raw material to us, for which we did not wait for the market as a company itself buys its raw material from outside. So approximately in a product line 10 से 15% का मार्जिन वहां पर भी हमारा बढ़ जाएगा. So once our mini steel plant is in place, coming up with our machining facility, which our facility will increase, our end margin will be increased. मशीनिंग डिवीजन तो हमारा जो टारगेट है मार्च अप्रैल तक चालू हो जाएगा. मिनी स्टील प्लांट आने में नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर लग सकता है. तो उसके बाद इसके फिगर्स में काफी ह्यूज जंप आने के पूरे चांसेस हैं और आएंगे. ओके. अच्छा अंशुल जी, आपने अच्छी तरह से समझाया. अभी मेरे को बताइए आगे चल के हमारा जो रेवेन्यू मिक्स है
फोर्जिंग्स और मशीनिंग, इसमें हम ये बात मान के चल सकते हैं कि अगले 2 साल में मशीनिंग विल बी अ काइंड ऑफ अ लार्जर एंड अ डोमिनेंट काइंड ऑफ सेगमेंट, क्योंकि वहां से मार्जिन मुझे लगता है काफी अच्छे आते हैं कंपेयर टू प्योर फोर्जिंग जब आप बेचते हो, और जब मशीन कंपोनेंट्स आप बेचते हो तो ऑब्वियसली मशीनिंग में तो ज्यादा मार्जिन मिलते हैं। तो कैन वी एज्यूम दैट कंपनी इज फोकसिंग मोर ऑन द वैल्यू एडेड मशीनिंग पार्ट गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट से 2 years ahead? सर यू हैव वेरी करेक्टली पॉइंटेड आउट, मशीनिंग में ही ज्यादा मार्जिन है। और गोइंग विद दिस लाइन वी आर नॉट ओनली डूइंग मशीनिंग, वी हैव ऑलरेडी एडेड अ असेंबली लाइन आल्सो। तो वी आर डूइंग ऑल द असेंबलीज एंड एवरीथिंग एंड वी आर सप्लाइंग टू कस्टमर्स। हमारा मेन टारगेट यही है कि हमारा जो 90% ऑफ द कंपोनेंट्स वो फिनिश मशीनिंग और असेंबली होकर जाए। रॉ फोर्जिंग में हमारा डीलिंग का कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंड ऑफ द रेट वी विल रिड्यूस इट ओके। फर्दर। और एक और सवाल अंशुल जी, जो मशीनिंग को लेके है, मोटा मोटी हम अभी कितने कंपोनेंट्स यानी कितने एसक्यूज या कंपोनेंट्स हम मशीन करके देते हैं? इफ यू कैन टेल मी अ नंबर्स, इससे मेरे को थोड़ा सा अंदाजा आएगा कि आपकी प्रोडक्ट वर्सेटैलिटी कितनी है। तो सर करंटली हमारे कितना बड़ा बेस होगा? सर हमारे प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। लेकिन क्या है, क्योंकि सब टेलर मेड्स हैं, अलग अलग जॉब्स हैं, लेकिन मेनली हम जो अभी डील कर रहे हैं लार्जर पिक्चर में क्रेन व्हील्स, शाफ्ट्स, एक्सेल्स, गियर कपलिंग्स, गियर्स, बुशेस, पाइपलाइन, सीमलेस पाइप्स, तो सेगमेंट्स, रोलर सेगमेंट्स and roller tables. We are doing the assemblies, crane hook block assemblies, sheave assembly. These are few of the items, sir. The list goes on. मतलब ओके आप कितने आइटम पकड़ सकते हो ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर में है सर। ओके ओके, नहीं तो समझ। हाँ। इनफैक्ट अंशुल जी, अभी एक बात बताइए कि कमिंग टू द वर्किंग कैपिटल साइड, हमारे धंधे में वर्किंग कैपिटल, नॉर्मली वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना बड़ा होता है? बाय द टाइम यू गेट द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, आप इन्वेंट्री रखते हो, कस्टमर को बेचते हो, फिर कस्टमर आपको पेमेंट करता है, तो मोटा मोटी हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल एज ऑफ नाउ कितना है? सर ये 4 महीना का पूरा साइकिल हो जाता है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग जो लीड टाइम है हमारा काफी हाई है। ये 2 से 2.5 महीना लग जाता है। उसके बाद जनरली पेमेंट जो पार्टीज हैं वो हम लोग को 30, 40, 45 डेज में पेमेंट कर देती है। तो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द एंड गेटिंग द पेमेंट, ये 3.5 से 4 महीना का ये हमारा साइकिल हो जाता है सर। तो अराउंड अबाउट 3 to 4 months इज द नॉर्मल वर्किंग कैपिटल साइकिल। यू कैन से दैट सर, यू कैन वेरी फ्रैंकली अच्छा से। अंशुल जी, हमारे बिजनेस में कुछ सीजनैलिटी होती है कि सेकंड हाफ इज ऑलवेज मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ, या फोर्थ क्वार्टर सबसे अच्छा क्वार्टर होता है, ऐसा कुछ हमारे धंधे में होता है? सर हमारे धंधे में फोर्थ और फर्स्ट क्वार्टर सबसे बेटर होती है, क्योंकि क्या होता है फोर्थ क्वार्टर में सारे प्रोजेक्ट्स क्लोज करने के रहते हैं, तो हमारे ऊपर भी प्रेशर रहते हैं, और जो कस्टमर्स के पास भी जो ऑर्डर पेंडिंग रहते हैं वो हाँ। सब प्रेशर दे के लेना चाहते हैं। ओके। और कंटिन्यूइंग द प्रोसेस क्या होता है, जो प्रोजेक्ट्स मार्च तक कंप्लीट नहीं हो पाते हैं हाँ। वो अप्रैल मई तक थोड़ा टल के जाते हैं। दे गेट द रिलैक्सिंग टाइम और दे गेट परमिशंस। तो हरदम फर्स्ट क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर यू विल सी द फिगर्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट बिटवीन फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड। सेकंड ये सब थर्ड ये सब में क्या थोड़ा सा हॉलीडेज ये सब के कारण भी थोड़ा सा मार खा जाता है। अच्छा। ओके। अच्छा अंशुल जी, अभी थोड़ा सा आपके प्रमोटर प्रोफाइल के बारे में बताइए कि हाउ इज द केआरए डिस्ट्रीब्यूटेड, लाइक आपका मेन फंक्शन कंपनी में क्या है, दूसरे कौन से इंपॉर्टेंट डायरेक्टर्स है, तो उसके बारे में बताइए, हु हैंडल्स विच फंक्शन इन द कंपनी, सो दैट इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द टॉप प्रोफाइल मैनेजमेंट। Sir, company actually there are many key players in the company, but coming Mr. GL Chamadia, who is the chairman of the company, plays a very important part tapping the market. Marketing is also reporting to him. I am looking overall thing is under my complaints. It is associated with Rashmi Chamadia further, who is taking care of regarding the quality segments and where we can use further improvisation of machines and everything. So basically, it is divided between three of us. I'm taking care of overall in charge for production and everything is under me, sir. मैं समझ गया, आई थिंक अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन अंशुल जी आज के लिए है कि देखिए, हर बिजनेस में रिस्क होता है, हमारे धंधे में भी रिस्क है। तो इन योर पर्सपेक्टिव एज अ प्रमोटर, आपने 45 साल से ये कंपनी आप बता रहे हो ये इन एग्जिस्टेंस है, तो मेरे को बताइए, हमने सबसे बड़ा रिस्क, कोविड को छोड़ दीजिए, कोविड वाज अ एबनॉर्मल इवेंट, बट अगर कोविड को हम छोड़ दें तो सर हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, और वो रिस्क को हम कैसे मिटिगेट करते हैं? इफ यू कुड शेयर योर थॉट्स। सर हमारे धंधे में जो सबसे बड़ा रिस्क है फ्लक्चुएटिंग ऑफ प्राइसेस ऑफ स्टील।
जो स्टील प्राइसेस इतना ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाती है, या फर्नेस ऑयल के प्राइसेस जो हमारे बेसिक रॉ मटेरियल्स है वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाते हैं कि जो ऑर्डर लेके हमने क्लोज कर दिया है तो उसमें लॉस आने के चांसेस हो जाते हैं कभी कभार. Apart from this, another very big factor is not getting the raw materials on time, which again calls for LD clauses and everything, Okay. late delivery and everything. So what we are doing, we are maintaining a healthy stock, or we doesn't allow this type of things to get affected into our business. So, and that is one of the bigger points we are ahead from our competitors, because जो रॉ मटेरियल लाने में उनको टाइम लगता है तो वो हमारे पास इन हाउस रेडी रहती है, तो वी सेव लॉट ऑफ टाइम देयर. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर रॉ मटेरियल का यही है, फ्लक्चुएटिंग ऑफ प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ दिस. तो वी आर कटलिंग इट आउट, कीपिंग द गुड अमाउंट ऑफ स्टॉक एट आवर एंड. नहीं बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से अच्युत जी आपने एक्सप्लेन किया. थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम टुडे. और सर मेरी तरफ से नहीं, आपको, आपकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस. सर फ्यूचर में भी टच में रहेंगे. थैंक यू. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू.